Tissue Bio classes. Good morning, students. Today our topic is Monera Kingdom. This topic is from class 11th, chapter number 2. Fine. Monera. Monera is prokaryotic and unicellular. Prokaryotic means what? Organism is having a undeveloped nucleus, and it is having, this Monera Kingdom is having a single body. Fine. Like bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, actinomycetes, rickettsia. Right? These come under Monera group. And Monera is divided into two parts. First is Archaebacteria, second is Eubacteria. On the basis of evolutionary advancement in their structure, these are divided into two parts, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria means what? It is a group of primitive prokaryotes. Fine. And the cell wall of Archaebacteria is made up of proteins, non-cellulosic polysaccharides. Fine. And cell membrane is made up of glycerol and other lipids. This glycerol is also lipid, but it is made up of glycerol as well as other lipids. And the unique feature of Archaebacteria is 16S RNA. Fine. And because of this feature, it plays in a separate domain. Fine. It places in a separate domain like archaea. And the other feature is that these are found in harsh condition like salt, marshes, hot sulfur springs, deep sea. Fine. And these are living fossils because these represent earliest form of life on earth. And the types of Archaebacteria are given here. First is methanogens, halophiles and thermoacidophiles. Is it clear? Fine. ओके देखो मोनेरा किंगडम क्या है, ये मोनेरा किंगडम जो होता है उसमें प्रोकैरियोटिक मिलते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, जिसमें क्या है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, इसलिए तो इसका फीचर है ये. सेकंड क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सिंगल बॉडी. उसके पास क्या है, सिंगल बॉडी है. इसके मेंबर्स हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसेट्स, रिकेट्सिया. फाइन. बट द बिगेस्ट मेंबर इन दिस किंगडम ग्रुप इज व्हाट, बैक्टीरिया. क्या है, बैक्टीरिया. एंड ये जो डिवीजन है इसका टू पार्ट्स में है, आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. आर्चीबैक्टीरिया में क्या, जो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए थे उसमें क्या है, प्रिमिटिव ग्रुप है ये. ठीक है. नेक्स्ट, सेल वॉल इसकी जो मिलके बनी होती है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है और नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एज वेल एज अदर लिपिड्स. ग्लिसरॉल भी है इसमें लिपिड, लेकिन ग्लिसरॉल के अलावा जो लिपिड्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. यूनिक फीचर क्या है इसका, 16S RNA. ये इसका यूनिक फीचर है किसका, आर्चीबैक्टीरिया का. और इसी फीचर के कारण इसको अलग डोमेन में रखा गया है, दैट इज आर्ची में. ठीक. फिर उसके बाद क्या है, ये हार्श कंडीशन में, एक और इसका यूनिक फीचर है कि हार्श कंडीशन में मिलता है, जैसे सॉल्ट हुआ, मार्शेस हुआ, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हुआ, डीप सी हुआ, इन सब में. और इनको लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अब भी प्रेजेंट है और उस टाइम में भी, बहुत पहले भी ये प्रेजेंट थे. ठीक है. ये जो लाइफ की अर्लीस्ट सबसे पहली फॉर्म है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक. नेक्स्ट है, आर्चीबैक्टीरिया की 3 टाइप्स हैं, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. अब देखो इसमें क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजेंस आर गिवन हियर. Methanobacterium, Methanococcus. These are generally found in marshy area, and these bacteria are obligate anaerobic. Fine. I'll tell you about obligate and facultative later. These obligate anaerobic form methane. Fine. And next is Halobacterium. This one is the example of halophiles, and these are found in salty area. And these are anaerobic in nature. Fine. In the absence, see, if oxygen is present and a bacteria is taking that oxygen, it means what? That is aerobic bacteria. And if it is not taking, if it is not taking the oxygen, fine,
then it is known as anaerobic. Fine. Next क्या है? Anaerobic. In case of halophiles, halobacterium act as anaerobic bacteria and it form ATP by trapping solar energy. And the sulfobus and thermoproteus, these two are the example of thermoacidophiles, and these are generally found in hot springs. Fine. And this one is what? This is aerobic in nature. Fine. And they oxidize sulfur, give rise to sulfuric acid. होगी बात क्लियर? मैंने क्या बताया है कि मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके? आर्ची बैक्टीरिया के। मिथेनोजेंस में जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफाई किए हैं यहाँ। पहला है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, ये मार्शी एरिया में मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोबिक। एरोबिक का मतलब क्या है? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ले रहा है बैक्टीरिया तो उसको क्या कहेंगे? एरोबिक, ठीक है। ले रहा का मतलब क्या है कि अगर वर्क कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या है? इट इज इन एरोबिक नेचर। अगर नहीं कर रहा, इट इज इन एनारोबिक इन नेचर। होगी बात क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है कि हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम कहाँ मिलता है? ये हेलोफाइल्स के अंडर आता है, सॉल्टी एरिया में मिलता है। एनारोबिक होता है ये नेचर में, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है बाय ट्रैपिंग। किसको ट्रैप करके? किसको यूज करके? सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट है सल्फोबस, थर्मोप्रोटियस। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? थर्मोएसिडोफाइल्स के। ये कहाँ मिलते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एरोबिक। फाइन। एंड दे ऑक्सीडाइज सल्फर। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं और किसको सीक्रेट करते हैं? H2SO4 को, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। यू नो वेरी वेल। फाइन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। दे लिव, मैं एक मेंशन करना भूल गया हूं, दे लिव इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन में होता है ये, इसीलिए इनका यूज होता है। दे आर यूज इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इन जनरेशन ऑफ बायोगैस, thermophilic enzymes, act as thermophilic enzymes, biosensors and restriction enzymes. फाइन, होगी बात क्लियर? ये हार्श कंडीशन में रहते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जैसे डीप सी में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, सॉल्टी एरिया में, मार्शी एरियाज में। तो ये टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंट को, एक्सट्रीमली हार्श एनवायरमेंट को। इसीलिए ये यूज होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, जनरेशन ऑफ बायोगैस में, थर्मोफिलिक एंजाइम्स में, बायोसेंसर्स में और restriction enzymes में। Fine. Next is eubacteria. These are true bacteria. They lack well-organized nucleus and membrane-bound organelles like mitochondria, chloroplast. These are having double membrane. Fine. And these are of two types. First is bacteria, that is also known as true bacteria, and second is cyanobacteria. This cyanobacteria is also known as blue-green alga. Fine. In case of true bacteria, these are generally unicellular and prokaryotic in nature, and they have cell wall. Fine. And the smallest bacteria is Lister pneumocystis, and with a diameter of 0.15 micrometer. Fine. Next is bacteria. These bacteria are smallest free living organisms. Fine. On the basis of shapes, these are of 5 types, but in this book 4 types are given here. Fine. First is coccus, second is bacillus, third is vibrio, and the last is spirillum. Fine. Coccus means what? These are having spherical in nature. Fine. These are having sphere-like structure, like monococcus. This is having single. Cell diplococcus means what? Sorry. 2 are present in this. And in case of streptococcus, more than 2. These are in generally chains. Fine. Last is staphylococcus. These are the types of. You have to just remember the one thing: coccus has spherical nature. Fine. Next is bacillus. Bacillus are rod-like structure like monobacillus, diplobacillus, streptobacillus,
Vibrio. Vibrio means what? Comma like structure. For example, Vibrio cholerae. These are the example of these, like Monococcus, Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Monobacillus, Diplobacillus, Streptobacillus. These are the example of these. Next is Vibrio cholerae, and the last is Spirillum. These have spiral-like structure, and the example of this is Spirillum volutans. Fine. देखो क्या बताया मैंने, जो यू बैक्टीरिया होता है ये ट्रू बैक्टीरिया होता है, इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है, सॉरी अंदर नहीं बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो परफोरेटेड होता है, ठीक है, अच्छे से वेल डेवलप नहीं होता। परफोरेटेड तो अच्छा है, लेकिन ये अच्छे से वेल डेवलप नहीं, कहीं से टूटा टूटा, अगर आप देखोगे उसको माइक्रोस्कोप में टूटा हुआ नजर आएगा। दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसमें जैसे यूकैरियोट्स में होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं होता है इसमें। इसकी टाइप्स हैं, क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, और इसको बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और इसका क्या है नेचर, ये यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट का भी फीचर है, बट इन केस ऑफ एनिमल नो सेल वॉल इज देयर, कोई भी सेल वॉल नहीं होता, ये बेसिक फीचर होता है इसका। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है, डेलेस्टर है, न्यूमोसेंटिस है, जिसका जो डायमीटर है वो है 0.15 माइक्रोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। शेप्स के बेसिस पे ये आपकी बुक में गिवन है, 4 हैं। कोकस, इसका नेचर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एग्जाम्पल मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। मोनो में सिंगल प्रेजेंट है, डिप्लो में डबल प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टो में मोर देन 2 और इन चेन्स। स्टेफिलोकोकस में भी आप देख लेना, ठीक है। बेसिलस में क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोकस कौन सी शेप का होता है, स्फेरिकल। बेसिलस कौन सी शेप का है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस। विब्रियो के केस में क्या है, कोमा जैसा दिखता है ये, ठीक है, जैसे कोमा यूज करते हैं ना वैसा नजर आता है। विब्रियो कोलरे। स्पिरिलम के केस में क्या है, ये स्पाइरल जो होता है, स्प्रिंग जो होता है उस तरह का होता है। इसके एग्जाम्पल है स्पिरिलम वॉलुंटेनस। फाइन। अगर आपको मेरा वीडियो, आज का टॉपिक यहीं तक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।